పరిచయ్ ఆర్ట్స్ ఫౌండేషన్ సమర్పించు డిఫరెంట్ షేడ్స్ జాతీయ కళా కార్యశాల 2026 కళాకారుల సమక్షంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా మరియు పట్టణాభివృద్ధి, యువజన అభివృద్ధి, పర్యాటకం మరియు సంస్కృతి శాఖల ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్ గారి అధ్యక్షతన 31 మార్చి 2026 ఉదయం 11:30 కార్యశాల ముగింపు వేడుక జరిగింది. हमारे तेलंगाना में हैदराबाद स्कूल ऑफ आर्ट बहुत पॉपुलर था सर, विद्याभूषण जी का बहुत नाम रहा। तो उसके बाद JNTU, SB कॉलेज, ऐसे अलग डिफरेंट है। जैसे देखिए विद्याभूषण जी को अपनी जो कला की प्रस्तुति के कारण से राज्यपाल को जो राजभवन में उसको जगह दे दी, एक हॉल दे दिया। तो उस टाइम में जो एक बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियंस है, सभी का पोर्ट्रेट या लाइफ पेंटिंग बनाने की जगह दिया था। तो इसे ही टी नागभूषण हमने एक 2 कलाकारों के नाम से अचीवेबल अवार्ड, कॉमेमोरेशन अवार्ड बन के रखा है। एक टी नागभूषण जी है, सो उसका चाइल्डहुड यहीं से गुजर गया है, हैदराबाद से स्टेट आर्ट कॉलेज में उन्होंने स्टडी किया। बाद में मुंबई जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से भी वो पास आउट हुआ। वैसे ही कपटराव वो भी हाँ गुलबर्गा से ही जन्म हुआ, लेकिन सेटल टू हैदराबाद ही हुआ। JNTU के प्रोफेसर भी थे, रिटायर्ड, तभी उसके बेटे वहाँ के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। तो इसीलिए हैदराबाद ऐसा स्टेट है, हर स्टेट की एक अंदाज रहता है, लेकिन जो मिक्सड कल्चर है, इंडिया की हर संस्कृति हमको हैदराबाद में देखने मिलती है। क्योंकि ये निज़ाम स्टेट सम ऑफ द डिफरेंट, हमने जो इतिहास के बारे में जो पढ़ते हैं 530 जो डिनास्टीज थे, उसमें रिचेस्ट जो डिनास्टीज हैदराबाद, निज़ाम और तिरुवांकुर और जूनागढ़ गुजरात है। तो डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स यहाँ हुआ है। तो इसी स्तर में हमने सभी आर्टिस्ट को बुलाया था। सभी आर्टिस्ट जो हमारे विनती है, जो एक इन्विटेशन है, उसको स्वीकार करके सभी यहाँ आए हुए सभी को मैं दोबारा अपने इंटरेस्ट की वजह से सभी को मैं स्वागत करता हूँ। तो आज 4 दिन कार्यशाला हो गया। तीन उसके बाद धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय सर धन्यवाद सर। प्रोफेसर पी राज, मिसेस डॉक्टर संजय मध्य प्रदेश से पूरे वडोदरा से आए हुए वरिष्ठ चित्रकार अजीत नाम है। He has totally coordinated all the artists, lock, stock and barrel. Without his effort, nothing could have.
Genuinely love to see your great works, good and great works. And I'm a nature lover. In my projects also, I do biophilic projects. Till now, since 1983, I went to constructions in the name of Alekia Homes and Hyderabad. All these days, I planted 1 lakh plus saplings in Hyderabad. More than cosmetic approach, I genuinely believe landscape is to support the ecological balance. When I saw your works, so divineful, nature oriented, and each painting is different from other works. And each one artist only can explain their thought process. Otherwise, one should experience it instead of discussion. One should experience the design, approach, thought process, colors and combinations. They can create a new word. We know the one word, but each artist know different words. But every artist is respected, and I want everyone to promote other artist works also. Then only the ecosystem will be developed. And when you are talking about your works, along with your works, you can introduce 2 or 3 colleagues of your friends and other works. Like that, 20 years back, whom I supported a small boy from the rural village who wanted to become a singer in the film industry. After traveling with him, I understand his passion as he is having lyrical values in his thought process. I made a small tweak to become him as a lyricist. He followed my advice and he finished 3,800 songs till today in the Telugu film industry, and he brought Oscar to the India for the Not Not song. His name is Chandra Bose. In the Oscar dais, he expressed gratitude towards me on the dais at Oscars, and he is writing a book on both of us. If you have a good friend, if you listen to his way forward, how your life is going to transform. That is his approach. Purely it is his talent, his luck and his hard work. I made a small tweak of connecting dots. Like that, each of you support others and you all become a good and great artist. And I truly pleasure this moment to call me as a guest, and thanks to my dear friend Jain Bhai. Always he is so kind of me, and Sir also spoke very well, and I can understand his passion with their parents' name, how he established this trust, and with love and respect, how he is treating each one of you. I felt very happy, and very happy to sit with the that you have towards art. And last time I also met Mallikarjun, Professor Mallikarjun, and I see that he is now that scaling it up to the next level. Because last time when I saw there were a few paintings and all, and now that I see that there are also awards being given and all, it's a wonderful approach. In fact, it's a great way of actually promoting art and culture. I was talking to a few of you, and then last time also when I was talking to Professor Mallikarjun, my idea was all the time saying that, okay, how can we actually integrate the other disciplines with art and culture? And you are custodians of art and culture. I see that there is a great amount of diversity in the school, because symbiosis, in fact, we always talk about diversity. I see a great amount of diversity. Yeah, I see the kind of paintings I see from different regions that actually brings a lot of knowledge. Possibly all little hidden things over there, if you can bring it out to the youngsters as well, that would be a great idea. So what we do here at Symbiosis is try and actually promote this concept of skills, because what I see this as a skill. There is a great amount of creativity when you bring out a painting. I see a great amount of creativity. If that goes into the minds of the managers, because I am from the Department of Management, so if the managers can actually try and get into the art that you are bringing in, I think that they will also bring in a few more ideas to the board. Whenever they go and sit in the boards, possibly these creative ideas can spark a few more thoughts which go in making the nation a big one and a greater one. Right. With these few words, I think I'll stop here, and I look forward for many such kind of workshops. All the best. Thank you.
मैं बॉम्बे से आया हूँ और ये जो पेंटिंग है ये डिवाइन पावर के ऊपर है। मैंने जो भी बुद्धा के ऊपर बनाया डिवाइन पावर में आदमी जो इंटरनल स्टेज जो होती है जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसने शो किया पेंटिंग। कितने साल से मैं करीब 50 साल हो गए। अभी करीब नहीं तो 35 जगह पार्टिसिपेट कर चुका और मेरा कम से कम 5-6 साल में कम से कम 30 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें 3 इंटरनेशनल है, बाकी नेशनल अवार्ड है। हैदराबाद में फर्स्ट टाइम है और मेरा कम से कम 17-18 ग्रुप शो हुआ है, 4 सोलो हुआ है, जिसमें बॉम्बे में 2 सोलो हुए, 16 एग्जीबिशन। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आज से 35 साल पहले यहीं आया था सर्विस के लिए और 35 साल के बाद आया हूँ और बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा सब लोगों से मिलके अलग अलग स्टेट के लोग से मिलके अलग अलग टाइप का वर्क देखने को मिला। संतोष कुमार शर्मा बॉम्बे से। महावर है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ सर। और मैंने जो अपना काम किया लगभग मैं इस फील्ड में 25 साल से काम कर रही हूँ और मैं कई जगह बाहर जा चुकी हूँ और मैं हर जगह अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने ये जो पेंटिंग बनाई है वो राजस्थानी जो हमारी पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग उसको लेके बनाई है। उसकी एक शैली है किशनगढ़ शैली को लेके बनाया है मैंने। ये जो मेरी पेंटिंग है इसमें राधा कृष्ण जी को मैंने दिखाया है। तो राधा कृष्ण जी है जो सावन सिंह वहाँ किशनगढ़ के राजा थे, उनकी जो दासी थी बनी थली वो बहुत सुंदर थी, वो उसे प्रेम करते थे तो उन्होंने उसको मतलब जो सावन सिंह ने अपने आप को कृष्ण जी और उनको राधा माना और दोनों को राधा कृष्ण के प्रेम के अपने प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम की तरह ही प्रगाढ़ बनाया और आगे बढ़ाया इसके माध्यम से। मैं लगभग सर बहुत जगह पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मैं जगह जगह मतलब जाती हूँ और लगभग 25-36 साल से इसमें काम कर रही हूँ। यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ, बाकी तो मैं और जगह दिल्ली जैसे हरियाणा पंजाब वगैरह सब इससे तो मैं जा चुकी हूँ। यहाँ सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। गैलरीज वगैरह में भी मतलब हमें कमी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा लगने नहीं दिया कि मैं अदर स्टेट में आ गई। मुझे लगा कि मैं अपने होम एरिया डॉक्टर ममता राजपूत, बबराला संभल यूपी से मैं यहाँ पर आई हूँ हैदराबाद में। और हैदराबाद में आकर मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश की गोंडा आर्ट और उत्तर प्रदेश के उस कल्चर को मैंने दिखाया है जो कि हमारे शुभ विवाहों के अवसर पर ये पेंटिंग्स की जाती है। और जो हमारे साल के त्योहार होते हैं उन त्योहारों पर भी हम इन पर काम करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हम दिवाली के बाद एक देवकान का त्योहार आता है, उस पर हम लोग इस तरीके के फॉर्म का काम करते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा नागपंचमी पर हम इस फॉर्म से हम नागों की एक पेंटिंग चित्रकला करते हैं। बाकी का ये हमारे शुभ शादी के विवाहों के अवसर पर ये सब चीजों को बनाया जाता है। और ये जो मैंने इसमें दिखाया है, इसमें मैंने उस शादी के विवाह के उस जोड़े को दिखाया है जिसमें लड़का लड़की का विवाह होता है। मैं इसमें तो बहुत बचपन से मुझे बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अभी इसमें मेरा लगभग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला और अवार्ड्स मुझे बहुत सारे मिल चुके हैं। और इसी को लेकर मुझे उत्तर प्रदेश से मेरा यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था कि हम अपनी कला को आदान प्रदान कर सके, जिसके लिए मैं मल्लिकार्जुन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए आमंत्रित किया और सभी कलाकारों के साथ मुझे अवगत होने का अवसर मिला। Thank you so much, sir.